worry about the days ahead. Now I'm learning to let go and seek you first in the days to come. I'm choosing to trust you. God, your ways are higher, and you'll always light the way ahead. God, you hold tomorrow, and I'm holding on to what you said. In this moment and forevermore, I'll praise you, my God, you never let me go. I know that my future's in you. Hello, you are watching Equippers Calcutta's online broadcast of our Sunday service. We believe you're going to have an amazing time during this service. We have been restricted in many ways during these times, but during these times, as you completely surrender your heart to God, as we come together and worship, we believe you will experience a touch of God and you will have a tangible presence of God in your life during these times. And we know that you are going to be touched during this service. We have so much to be grateful for in our lives, and yet every day life can be demanding. We have certain struggles to go through. Sometimes we could be heartbroken. We believe, or sometimes we just think that God is not here, He's not with us. He lets us go through our troubles by ourselves. But let me encourage you this morning, God knows you, God sees you, He knows what you're going through, and He's never left us to be by ourselves. His word says, I will never leave you nor forsake you. And what makes the lasting difference is we have a choice. We have a choice to make every day in our lives to have a heart of gratitude. So if we can approach God, if we can go to Him, if we can go to His presence with a heart of gratitude and be thankful for everything that He has done in our lives and continues to do, I can assure you that our situations are going to change, our lives are going to change, God's power is going to work through you, He's going to strengthen you, He's going to give you the grace to face every day in your life. The Word of God says in 1 Thessalonians 5, give thanks to God in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So can I encourage you today to be grateful for everything that God is doing in you and through you. Wow, what an amazing short word of encouragement, an attitude of gratitude. Amen. That makes all the difference in our lives. Well, guys, we want to take this time to welcome all of you to church. Amen. Doesn't matter where you're tuning from, we want to extend a very warm Equippers Calcutta welcome to all of you, and we just want to welcome you in, and we know that you're going to be blessed during these times. Whether you are in Calcutta or whether you are outside or any part of the world, we just want to give you a very warm welcome during this time. And guys, we have many things going on during the life of our church. Many ways, yes, we are restricted, but every Wednesdays we have our Zoom Connect.
We have fellowship over Zoom from 7 p.m. to 8 p.m. And over the weekend, we do our Youth Connect and our Kids Connect as well. So we want to encourage you to come and join in and be a part. And if you are not plugged into a small group or our e-group yet, do contact one of our leaders, and we would love for you to get plugged in one of the small groups as well. And hey, don't forget to like and to share this on your Facebook and on other groups as well. Yes, because this is going to bless you, it's going to bless your friends, it's going to bless everybody who's going to be watching this service, because God's got a great message for you. So please stay tuned even for the rest of worship, prayer, and the message coming up. We are going into a time of praise and worship. I want to encourage you to just forget about everything else in your life right now and stay tuned to the Holy Spirit, stay tuned to His voice, and just create an atmosphere of worship around you. Let our voices be lifted up. We have a special group of people. We have a team of young people who are going to bring the praise and worship to us this morning. They are the third generation of the Thampi family. They are cousins. They are young people who are serving God in different capacities, and it's a great privilege to invite them and have them lead us into a time of praise and worship. So can we put our hands together and welcome them? Amen. Hey church, hey Equippers Kolkata, it is amazing to hang out with you all. We are here to bring you guys into a time of worship and praise. So let's get started. 1, 2, 3, and... नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. Say na 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 na, say na 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 na, come on. Say na 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 na, say na 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 na, गाइए. Say na 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 na, hey. Say na 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 na, hey. Na 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 na, hey. Na 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 na, hey. Na 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 na, hey. Na 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 na, hey. Na 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 na, नाचूंगा. Sing it. होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. और नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. और नाचूंगा पगलों के समा, और गाऊंगा, मेरा राजा है महान. Sing it. नाचूंगा पगलों के समा, और गाऊंगा, मेरा राजा है. Let's go faster. नाचूंगा पगलों के समा, और गाऊंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा पगलों के समा, गाऊंगा, मेरा राजा है महान.
जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। लॉर्ड तेरा नाम। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम ऊंचा है। Sing it out. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, वो नाम को सलाम करे। गाइए जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, वो नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। सबको जय मसीह कलीसिया। आइए हम ये समय लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हम आज प्रार्थना करेंगे विशेष करके हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक पासवान की जो परिवार है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ये हमें पता है कि बहुत सारे समय तक हम संगति कर नहीं पाए हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग जो है घर में है, संगति कर नहीं पा रहे हैं। तो हम सारे विश्वासी भाई बहन के लिए एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु सबको उनके वचन के द्वारा सामर्थ दे और बल दे। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और ताकि प्रभु हमें सहायता करे, ये समय से होके हम आगे जाने पाए और प्रभु से हम बल प्राप्त करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे आसपास जितने सारे भाई बहन हैं, अगर आप लोग आसपास बैठे हुए हैं, हम एक साथ हाथ पकड़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे और ये विषय लेके भी प्रार्थना करेंगे। जितने सारे आज हमारे साथ चर्च में आए हैं, ऑनलाइन में आए हैं, उन सारे भाई बहन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो अवसर प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बच्चे लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक पासवान के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, इस कठिनाई का समय में प्रभु तेरा उपस्थिति हमारे साथ प्रभु जी बहुत दरकार है प्रभु जी, तेरे वचन हमारे जिंदगी में बहुत दरकार है प्रभु जी। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर ताकि प्रभु तेरे उपस्थिति प्रभु जी हर एक विश्वासी भाई बहन के साथ साथ रहे प्रभु जी, हर एक बच्चे लोगों के साथ साथ रहे प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी, अगर कोई बीमार होंगे प्रभु परमेश्वर, अगर कोई तकलीफ में होंगे प्रभु परमेश्वर, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर ताकि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके साथ साथ रहे प्रभु जी, तेरे उपस्थिति हमेशा उनके साथ साथ रहे प्रभु जी, उनको हौसला मिले प्रभु तुझसे प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन से प्रभु जी ज्ञान मिले प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन से प्रभु जी कंफर्ट मिले प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे आज इस प्रभु संगति में जो प्रभु ऑनलाइन में प्रभु जी है प्रभु परमेश्वर, जितने सारे भाई बहन लोग हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु तू आशीष दे, बल दे, बुद्धि दे प्रभु जी, तेरे वचन की प्रभु जी सामर्थ्य उनमें तो प्रभु भर दे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु सारे विषय के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु तू हमारा प्रार्थना सुना, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी तू हमें उत्तर भी दिया प्रभु, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम इस छोटी सी विनती मांगते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन। हेलो चर्च, दिस इज पास्टर सूरज हियर। हाउ आर यू ऑल? मैं विश्वास करता हूँ आप शरीर प्राण आत्मा में आप मजबूत और स्वस्थ हैं। मैं आज आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आ रहा हूँ और वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट आपको शेयरिंग करना चाहता हूँ। और आज मैं परमेश्वर की दया के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर आपने परमेश्वर की दया को प्राप्त की है तो क्यों ना एक बार आप मेरे साथ मिलकर आमीन कहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेवर क्या है, परमेश्वर की दया क्या है। मैं इंग्लिश में इस प्रकार कहना चाहता हूं, दिस मीन्स शोन काइंडनेस एंड ट्रीटेड विथ अ जेनरसिटी एंड गुडविल फॉर बियॉन्ड व्हाट वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड। एक व्यक्ति जो चाहत नहीं रखते या फिर जिसके योग्य वो नहीं है, अगर वो कुछ प्राप्त करते हैं तो एक फेवर प्राप्त करते हैं। जैसे हम देखते हैं एक अच्छा समारितान का कहानी लूका का किताब में 10 अध्याय पे, और वहाँ लिखा हुआ है कि एक व्यवस्थापक जब एक व्यक्ति जो यहूदी व्यक्ति सामरिया की ओर यात्रा कर रहा था तो कोई याजक या फिर कोई ले भी नहीं उसे मदद नहीं किया, पर एक सामरी व्यक्ति वो एक व्यक्ति जो पढ़ा हुआ था उसको आके सामरी व्यक्ति ने मदद किया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ये अजीब टाइप का बात हो गया वहाँ। उसी प्रकार से एक इंसिडेंस में आपको पुराने नियम से कहना चाहता हूँ। क्यों ना आप मेरे साथ मिलकर बाइबल को खोले, राजाओं का किताब दूसरा राजा 25 चैप्टर का 27 से लेकर हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की कैद के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एबीमेलेक राजगद्दी पर विराजमान हुआ,
उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया। उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे उनके सिंहासन से उसको सिंहासन के अधिक ऊंचा किया। यहोयाकीन ने बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया और प्रतिदिन के खर्च को लेकर राजा का यहाँ नित्य का खर्च ठहराया गया जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। हम यहाँ देखते हैं राजा यहोयाकीन यहूदियों का एक राजा था, उसे बबीलोन की एक राजा जो नया राजा आया तो उसकी ओर से दया मिला है। छोटी सी बैकग्राउंड में आपको कहना चाहता हूं, जब आप चैप्टर 24 से लेकर आप पढ़ने शुरू करते हैं कि इजराइलियों के पाप के कारण इजराइलियों को जो है बहुत बड़ी सजा दिया गया था और बेबीलोन ने जो है इजराइल के ऊपर आके आक्रमण किया और आप इंसिडेंट्स पढ़ेंगे आपका दिल टूट जाएगा। परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था, परमेश्वर के भवन के सारे वस्तुओं को चोरी करके ले गया था और वहां की जितने भी जवान है सुंदर घर और खेत वो सब कुछ जला दिया गया था। और वहां पर मैं लिखा हुआ कि जितने भी जो लोग थे उसको बंदुआई करके बांध के लेके चला गया था और जो कमजोर थे रोगी थे बीमार थे केवल उनको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि जाके दाग का बारी का खेत करो। और यह इंसिडेंट बहुत भयंकर वहां पर में हुआ है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पाप के कारण। तो यहाँ हम इंसिडेंट्स को देखें, यहोयाकीन और उनके माँ और बहुत सारे लोग जो है बंदी बना के इस देश में बेबीलोन में चला गया। इजराइलियों का मंदिर नहीं है, इजराइलियों का कुछ भी नहीं है, कोई आशा नहीं है। इस तरफ में देखें तो कभी मिस्र आते हैं, उस तरफ में देखें तो कभी कल्दियंस आते हैं, यहाँ पर भी देखते बेबीलोनियंस आते हैं और आके कब्जा करके 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 पहले तो नॉर्थन किंगडम, उसके बाद में जैसा सदर्न किंगडम, सब कुछ इजरायली बर्बाद हो गया। लेकिन 33 इयर्स तक उसके बाद में एक इंसिडेंस होता है। यहाँ एक राजा का आता है बेबीलोन में और इसका नाम है एबिल मर्दोक। 33 साल के बाद में एबिल मर्दोक यहोयाकीन के पास आके बोलता है तू अब राजा होगा और उसको राजा बनाता है। उसके बाद में वहां पर में नित्य राजा के साथ भोजन करता और उनको जो भी खर्च चाहिए एबिल मर्दोक जो है यहोयाकीन को देता है। यहां पर हम ये चीज देख सकते हैं कि यहोयाकीन के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और एक राजा का फेवर को यहां पर में पाया हुआ देख सकते हैं। उसी प्रकार से बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ वर्सेस देना चाहता हूं। यशायाह की किताब 55 का 6 और 7 में यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का विचार और हमारा विचार में बहुत अंतर है। परमेश्वर दया देता है, परमेश्वर करुणा देता है बोल के लिखा है यशायाह की किताब में। जर्मिया का 31 से लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां कहता है परमेश्वर जो है एक नया वाचा अपने लोगों के साथ बांधना चाहता है और वो वाचा जो है ऐसा है जो उसमें अनुग्रह का वाचा है। वो वाचा जो है परमेश्वर हमारे दिलों पर उनके आत्मा के द्वारा लिखना चाहता है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने बलबूते पर अपने जीवन में शांति और उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। कितने भी कोशिश करने के बावजूद भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने नया वाचा को इंसान के लिए एक दया करके परमेश्वर ने दे दिया। हम उसके कहानी के बाद में यहोयाकीन के बाद में देखते हैं एजरा आता है, नेहम्याह आता है, एस्तर का कहानी को हम देखते हैं और इन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। इन लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं था। एवरीथिंग वाज गॉन, दे हैड लॉस्ट everything. They had lost power, they had lost people, they had lost money. लेकिन सब कुछ नुकसानी होने के बावजूद साल के बावजूद परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं भूला था। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था मैं तुझे और तेरे जाति को आशीष करूंगा, वो परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ा था। हालांकि उनके पास में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर को पति था। मंदिर नहीं था, अपने धर्मगुरु लोग नहीं था, राजा नहीं था, सब बर्बाद हो गए थे, तितर बितर हो गए थे। लेकिन परमेश्वर एक एक करके यहां जमा कर रहा है। आज की परिस्थिति क्या है? होल वर्ल्ड इज हैविंग इन ट्रबल। मसीह लोगों के जीवन में बहुत सारी ताड़ना है। आर्थिक की कमी घटी, बहुत सारे जगह में आप देखिए कि बहुत सारे आर्थिक परिस्थितियां खराब है। हमारा देश के बारे में कुछ आर्थिक अवस्था के बारे में अगर आपने पॉलिटिकल व्यापार लोग बात को जानते हैं तो बहुत बुरा परिस्थिति है मसीह लोगों के लिए, आर्थिक अवस्था के लिए।
जो सेवकाई वो लोग करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि अभी चर्च में लोग नहीं जा सकते, है ना, कोरोना का समस्या के कारण लोगों को जो इतना समस्या है, उनको लगता है कि उनके पास में कुछ नहीं है, लोग जमा नहीं हो सकते हैं। बट परमेश्वर ने हमें भूला नहीं है। परमेश्वर ने आपको याद किया है। जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में प्रतिज्ञा किया, वो परमेश्वर, अगर आप चर्च नहीं है, आज आपके पास में बहुत सारे आर्थिक अवस्था का परिस्थिति ठीक नहीं है, हो सकता है आप लोगों को गुलामी का जैसा एहसास इन दिनों में हो रहा है, तो मैं वो बात को याद दिलाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने यहोयाकीन का जीवन में अनुग्रह किया था, जो परमेश्वर ने एजरा को बुलाया, नहम्याह को बुलाया, एस्तर को बुलाया, जो परमेश्वर ने यशायाह और यिर्मयाह की किताब में वायदा किया, मैं तुझे अनुग्रह देता हूं, वो परमेश्वर आज आपको अनुग्रह देता है। मैं क्विकली आपके लिए एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहूंगा। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 17 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीहा के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीहा में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हम जो योग्य नहीं था, अयोग्य थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें योग्य बनाया और उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। हमारे अपराधों का दोष हमारे ऊपर नहीं लगाया और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हिब्रू का किताब में हम लोग पढ़ेंगे, हिब्रू का किताब 9 अध्याय का 28 से लेकर लिखा है, वैसे ही 27 से पढ़ूंगा, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीहा भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मैं यहां समाप्त करूं मेरे प्रियो, परंतु हिब्रू की किताब 9 का 28 ने क्या कहा? पहले बार जब यीशु आया दुख उठाने के लिए, हमारे पापों को उठाने के लिए, और उसने हमारे पापों के लिए वो मरा, लेकिन अंतिम में क्या कहता है? वो कहता है अब फिर वो आएगा, लेकिन क्यों? वो आपको लेने के लिए। मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम परमेश्वर की बाट जोहते रहें, क्यों ना हम अपना मन को फिराएं, क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, क्यों ना परमेश्वर की स्तुति करें। कभी कभी जब परमेश्वर की प्रेम को महसूस करते हैं ना, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, चाहे कितना भी ट्रबल आपके जीवन में क्यों ना हो। तो लेट्स जस्ट वर्शिप गॉड, लेट्स जस्ट थैंक गॉड, लेट्स जस्ट गिव हिम द प्रेज, लेट्स जस्ट गिव हिम ग्लोरी। इस वक्त ये समय को देने के लिए मैं परमेश्वर को दास पास्टर बीनू एवं टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको उत्साहित करता हूं। यहोयाकीन का परमेश्वर, एजरा नहम्याह एस्तर का परमेश्वर, वो परमेश्वर जिन्होंने एक सामरी व्यक्ति के द्वारा एक यहूदी को मदद किया था, उसका परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल सकता है। हो सकता है चर्च नहीं है, हो सकता है बहुत सारी बिल्डिंग नहीं है, हो सकता है जमा नहीं हो सकते, हो सकता है आपके पास में आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, वो परमेश्वर आपके लिए नया द्वार खोल सकता है। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच। For I spoke
Church, it's time for us to give to the Lord. We give to the Lord in obedience to His word. We give from the overflow of our love and gratitude for what He has done for us. We give to honor our God because He holds the highest place in our hearts. We give because we want to be a part of expanding His kingdom on earth. There are many ways you can give. You can transfer your giving into the church bank account. The church account information is on the screen, and you can use that to transfer your offering or tithes to the church. You can also use any of the UPI platforms like Paytm, PhonePe, GPay, Amazon Pay to bless the Lord with your giving. Just take a screenshot, go to the UPI platform of your choice, like GPay, Amazon Pay, BHIM, or Paytm. Open the app and scan the QR code to make the payment. We also have the church UPI ID available for direct transfer without scanning QR code, and if you require it, do contact us. If you are collecting your offering at home and you are finding it difficult to transfer the giving, do inform one of the pastors and they will be able to assist you. May God bless you and open the windows of heaven for you and rebuke the devourer for you as you continue to honor God with the best and with your first. गुड मॉर्निंग चर्च। मैं आज वेलकम करना चाहती हूँ पास्टर विनू थम्पी, जो हमारे बीच में आज वचन शेयर करेंगे। ऑसम एंड ग्रेट मैन पास्टर विनू थम्पी। Hi, church. Believe we all had a wonderful time during our worship today. कलीसिया, मैं आपको अभिवादन देना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ आराधना में आपका बहुत अच्छा समय था। Amen. What an amazing God we serve. कितना महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। Our God is a promise-keeping God. हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा को रखने वाला परमेश्वर है। Our God is a loving God. हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। A God who always embraces us. हमारा परमेश्वर हमेशा हमें बाहें में लेते हैं। Amen. So let us just focus our minds and really prepare our hearts, to tune into God's word and to hear what the Holy Spirit has to speak to us today. तो क्यों ना हम अपने मनों को अपने ध्यान में लेके आए ताकि परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आत्मा से हमसे बातचीत कर सके। Amen. Today I want to speak to you about something that is very special, about our relationship with God, having a healthy relationship with the Abba Father. आज मैं उस विशेष शीर्षक पे बातचीत करने चाहता हूँ जो एक स्वस्थ संबंध परमेश्वर के साथ रखने के लिए पिता के साथ। Amen. We know that Christian life, it is a relationship with Jesus. हम जानते हैं मसीही जीवन यीशु मसीह के साथ में संबंधित जीवन है। Amen. It is not just a religion. It is not just following a bunch of do's and don'ts or rules and regulations. ये बहुत सारे धर्म के कारण ये करना वो नहीं करना, ये केवल वैसा बात नहीं है। My dear friends, Christian life is a relationship. मसीही जीवन एक मेल मिलाप का जीवन है। Amen. Because our Lord loved us so much that it's because of His love that He gave His life for all of us. क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें इतना मोहब्बत किया और उनके हमारे जीवन में प्रेम के खातिर उसने अपने आप को बलिदान दिया। Amen. So it's very important that we have to have a healthy relationship, a relations with the right foundations, so that we can enjoy our life with the Lord. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो जो संबंध और वो नींव हमारा सही जगह में हो सके ताकि हम परमेश्वर में और बढ़ सकेंगे। Amen. Because if our relationship is not right or if it is not healthy, everything else, everything we do depends on that. अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, वो मेल अगर सही नहीं है, तो सब कुछ उसमें ही निर्भर करती है कि कैसा फल लाए। Amen. That is why it's so important to make sure that the foundation of our relationship is correct. That we have started this relationship on the right note and on the right foundation. और ये निश्चित करना है और निर्धारित करना है कि हमारे जो संबंध की जो फाउंडेशन है, नींव सही होना चाहिए, जिसमें हम निर्माण कर सके अपना संबंध को। Amen. So I want to take our attention to 1 Samuel and to focus on the life of the family of Elkanah, through which we can actually come to
know how we need to base our relationship with our Lord. और पहला शमूएल की किताब से आज एक अध्याय से हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के साथ में सच्चाई का संबंध कैसे रखना है। Amen. So when you read 1 Samuel chapter 1, जब आप पहला शमूएल की किताब एक अध्याय को पढ़ते हैं so we see that it is talking about a family, the family of Elkanah. आप एक परिवार के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं जिसका परिवार का नाम है एल्काना का परिवार। And it says that Elkanah had 2 wives. और यहाँ लिखा हुआ है कि एल्काना का 2 पत्नी था। The name of one was Hannah, एक जन का नाम हाना था the name of the other was Peninnah. और दूसरा पत्नी का नाम था पनीना। Peninnah had children, but Hannah had no children. पनीना के तो बालक हुए परंतु हन्ना का कोई बालक ना हुआ। Amen. And as we read down, it says like this. और जैसे हम नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ ऐसे लिखा है, It says that, and whenever the time came for Elkanah to make an offering, और लिखा जब भी वो मेल बलि चढ़ाने का समय आता है जो एल्काना का, he would give portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters. और वो क्या करते थे कि जब भी वो बलिदान चढ़ाने जाते थे कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ भाग परिवार को देते थे। But to Hannah, he would give a double portion because he loved Hannah. लेकिन वो हन्ना को 2 गुना देती थी वो दान, क्योंकि वो हन्ना को बहुत प्रेम करती थी। Amen. And then in verse 6 it says, but her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. परंतु 6 में लिखा है उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसको कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। Amen. So here we see, Elkanah had 2 wives. One of them, Peninnah, she bore many children, but Hannah had no children. और हम यहाँ देखते हैं कि एल्काना का 2 पत्नी है, उनमें से पनीना उनके बहुत सारे बच्चे हुए, बालक हुए, परंतु हन्ना का बच्चे नहीं था। And because Hannah did not have any children, she was feeling so miserable that on one side Peninnah is having a lot of children, and on this side she has no children, and she was feeling so miserable. और यहाँ हम देखते हैं कि हन्ना जो है बहुत ही दुखित और बहुत ही पीड़ित थी। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास कोई बच्चा ही नहीं था, परंतु उनके साथ उनके जो पति के दूसरे पत्नी जो उनके पास बहुत सारे बच्चे थे। And Hannah probably thought, now because I am not able to give any children to my husband, he is not satisfied, he is not happy with me, and maybe he does not truly love me. तो हन्ना का सोच क्या थी यहाँ पर में कि हन्ना को लग रहा था कि मेरे पास तो मेरे पति के लिए कोई बच्चे नहीं, तो मुझे वो प्यार नहीं करता है और मेरा पति मुझसे संतुष्टि नहीं है, उसको लग रहा है। Amen. But we see when you read down in verse 8, you know what Elkanah, her husband, tells her. 8 में लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा। Yes. He said, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? एल्काना हन्ना को यहाँ कहते, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और ऐसा खाना नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटा से भी अच्छा नहीं हूँ? Amen. So we read earlier also that Elkanah, even though Hannah did not bear any children, Elkanah loved Hannah more. और हमने यहाँ जाना है कि हन्ना का बेटा बेटियां नहीं था तो भी एल्काना जो है हन्ना को बहुत ज्यादा प्यार करते था। Amen. Amen. We see how Elkanah would give a double portion of all the gifts to Hannah than he would give to Peninnah and her children. और पेनिन्ना को और जो बच्चे को जितना दान देता था उससे दुगना दान जो है हन्ना को एल्काना दिया करता था। Amen. So what we can learn here is that, see, our relationship with God does not have to be based on what we do for God. तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं? हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में जो है वो इसीलिए नहीं कि हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं उसके आधार पे नहीं है। Amen. Here Hannah was thinking, because I am not able to give any children, maybe my husband is not pleased with me. और यहाँ कहानी ये है, हम देखते हैं कि हन्ना सोचती है मैं तो कुछ भी संतान नहीं दे पा रहा हूँ इसलिए मेरा पति मुझसे खुश नहीं होगा, उनकी सोच है। Amen. In the same way, when we come to God, many times we feel
we need to do a lot of things to please God. Only if we do so many good things, only then God will be pleased with us. और हम लोग भी यही सोच बहुत सारे समय हमारे जीवन में होते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर के लिए मैं बहुत कुछ काम करूं तो ही परमेश्वर मुझसे आनंद है। ये हमारी सोच है। Amen. Church, my dear friends, you know that is religion. कलीसिया, मैं इस बात को धर्म बोल के कहना चाहूंगा, ये धर्म है। You know, by pleasing God, by doing a lot of things. परमेश्वर को आनंदित करना या खुश करना बहुत सारा काम करने के द्वारा। Amen. Pleasing God by, you know, always trying to do things that we feel is what will please God. और हमेशा यही काम करने की कोशिश हम करते हैं कि ये करने से प्रभु खुश होगा, ये करने से प्रभु खुश होगा। हम लोग हमेशा वही ताल में लगे रहते हैं। And many times, you know, because of that, we are not able to have a proper relationship with God. और उसी के कारण बहुत सारे समय हम परमेश्वर के साथ में सही संबंध नहीं रख सकते। You know, every time we come to Him, we are always thinking about, oh, what should I do for Him? तो हमेशा हम प्रभु के पास आते हैं तो मैं उसके लिए क्या करूं, हम यही सोचते हैं। Or we feel guilty, oh, I could not do that for God. या फिर हम अपने आप को दोष लगाते, कसूर मानते, ओ प्रभु के लिए ये नहीं कर पाया। Amen. So we need to understand that Christianity is a relationship, and in a relationship, what matters is not performance; it is being who you are. और क्रिश्चियनिटी में इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसका नियम यही है कि कुछ काम करना नहीं, परंतु वो संबंध प्रभु में आप कौन है जानना। Amen. That is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। You know, imagine in a relationship with a husband and wife. कल्पना कीजिए एक पति पत्नी के बीच का संबंध। If the husband is always trying to do things to please his wife, thinking only if I do these things she will be happy, how will that relationship be? कल्पना कीजिए एक पति जो है पत्नी के लिए जो बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहा है और ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है कि जब मैं कुछ करूंगा तभी वो मुझसे प्यार करेगी, तो ये संबंध कैसे टिक सकेगा? आमेन। It will be a miserable relationship. ये बहुत ही पीड़ित एक संबंध होगा। You know, if you try to base your relationship on your performance, there will be always fear in it. अगर आप अपने संबंध को आपके काम के ऊपर या परफॉर्मेंस के ऊपर में आप आधारित करना चाहते हैं तो हमेशा प्रॉब्लम होता है। You know, there always will be fear because you are always fearful whether the person will like what I am doing or not. अगर आप वे आधार पे ये काम करते हैं तो हमेशा डर रहते हैं और आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है कि नहीं, एक भय में जीना पड़ता है। You know, maybe my wife or my husband is expecting better than what I am giving. So if I give this, maybe they may not like it. So you will have that doubt and that insecurity will always be there in our minds. और हमारे मन में जो है एक असुरक्षा महसूस हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ ना दूं तो शायद वो मुझे प्यार नहीं करेगा। My dear friends, it is the same way many believers in church all across that I have seen are living in a relationship that is based on fear, based on performance, based on doubt. They don't have a real good relationship with God. और मैं व्यक्तिगत तौर से मैंने विश्व में बहुत सारे विश्वासियों को देखा है कि वे लोग कुछ काम के आधारित पे वो संबंध को अपना पहचान देना चाहते हैं, परंतु ये गलत है और लोग डर में जी रहे हैं। Amen. Amen. You need to know that, you know, my God loves me because I am part of His family. हमें ये जानना जरूरी है, मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है क्योंकि मैं उनका परिवार का सदस्य हूँ। Amen. Just as we love our children, yes, they have weakness, you know, they have failures, but all that we may not like what they are doing, but irrespective of that, we love them and accept them because they are our children. जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, तो वो कैसे भी कार्य क्यों ना करो, कितना भी समस्या क्यों ना करे, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। That is why Jesus said, you have to turn and become like little children to enter the kingdom of God. और इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हें छोटे बच्चों के समान होना जरूरी है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने को। Because little children are not thinking of doing performance to please their parents. क्योंकि छोटे बच्चे कभी भी कोशिश नहीं करते कि ये करके दिखाने के लिए, वो करके दिखाने के लिए, माता पिता का प्रेम पाने के लिए नहीं। Amen. They just as they are, they cry when they want to, they do their thing when they want to, they ask what they want, you know,
all these things are there. They are not trying to please anybody. They are just being who they are. और उन्हें जो चाहिए वो अपने पिताजी से मांग लेते हैं। वो कुछ करके दिखाने की कोशिश नहीं करते। वो रोते हैं, चिल्लाते, जो उसे चाहिए वो काम करते हैं बस, और उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। Amen. So this is an area, when I was growing up, I used to struggle in this area because my relationship with God was not based on what God had done for me or who I was. I was always trying to please God and always trying to do things to get God's attention and favor. मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा अनुभव ये है कि मैंने हमेशा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश की ताकि मेरा संबंध मजबूत हो जाए। हालांकि परमेश्वर का जो प्रेम को मैं महसूस नहीं कर पाता था, उन्होंने जो मुझे प्रेम किया। Amen. And because of that, because I was basing my relationship on performance, always there was guilt, always there was fear in my life. हमेशा मैं सोचता था कि मैं कुछ परफॉर्म करूं और उसका प्रेम को पाऊं बोल के करता था, लेकिन जब भी करता था मुझे अपने आप में दोष महसूस होता था, कुछ ना कुछ गलती मुझसे हो जाता था। My dear friends, today I want to tell you the good news that even before you were born, even before you had committed any sin, even before all that, Christ has already paid the price for you on the cross of Calvary. मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आपका जन्म होने से भी पहले आपके पाप, आपके अधर्म और आपके दोष के लिए यीशु ने आपके लिए मूल्य दे चुका है। Amen. Because God knows that we cannot do it on our own, so He sent His Son. Amen. And He became a sacrifice, and through faith we are completely accepted, freely accepted into God's family. और क्योंकि वो जानता है कि हम अपने आप में उद्धार नहीं ला सकते और हम अपने आप को स्वीकार योग्य नहीं बना सकते, इसीलिए हम जैसे हैं परमेश्वर ने वैसे हमें स्वीकार किया है। Romans chapter 5 verse 8 says like this. रोमी की किताब 5:8 में लिखा है ऐसा, But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Amen. See, Amen. that's how God demonstrated His love for us. परमेश्वर ने अपना प्रेम का प्रमाण इस प्रकार से हमें किया प्रियो, That when we were enemies, we were sinners, that is when Christ died for you. जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, हम पापी थे, तब परमेश्वर ने प्रेम दिखाया हमें। God was showing, I know that your life may not be perfect, but irrespective of that, I am making a way for you to come to me. और परमेश्वर यहाँ ये सिखाना चाहते हैं कि आप असंपूर्ण हो, आप में कोई पूरा धार्मिकता नहीं है, परंतु चाहे जो भी हो मैं आपके लिए मार्ग निकालता हूँ, कहता है। Amen. Amen. So, I want us as a church to understand that, get a revelation of God's love, get a revelation of, that I am born again into God's family, and that is where everything starts. मैं आपको वो प्रकाश के बारे में कहना चाहता हूँ। आप ये बात को जानना जरूरी है कि मैं परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया हूँ और इसका मतलब क्या है। Amen. See, many times we as believers, many times when we pray, even our prayer sometimes is coming out of a fear we have. और कभी कभी विश्वासी होकर हम जब प्रार्थना करते तो प्रार्थना भी क्यों होता है? क्योंकि डर होता है, तो कुछ डर के कारण प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग। Amen. Because I was speaking to somebody, and they said, somebody told me that a great danger is going to come to me, so I'm going to fast. और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा, एक जन व्यक्ति ने ऐसा मुझे कहा एक्चुअली कि कुछ भयंकर घटना घटने वाला है, तो इसलिए मुझे उपवास प्रार्थना करना है। And I'm not saying fasting is not right or fasting to avoid things is not right. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चीज को रोकने के लिए उपवास करना या फिर प्रार्थना करना आपके लिए गलत है, नहीं बोल रहा हूँ। But praying because of fear is not right. लेकिन प्रार्थना जो है डर के कारण करना सही नहीं है। Because prayer is communion with God. क्योंकि prayer is talking to God. क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के साथ मेल करना है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बोलना और बातचीत करना है। And if we are praying to God because of some fear, that means we are trying to use God for our own situation. That is not a good relationship. और अगर प्रार्थना हम कुछ परिस्थिति से बचने के लिए कर रहे हैं तो परमेश्वर के साथ भी वो सही संबंध का इशारा नहीं है। Amen. Or many times people do things, people give gifts or give money or do charity
because they want to get God's attention and gain God's favor. और बहुत सारे समय हम चैरिटी का काम करने के लिए कोशिश करते हैं या फिर कोई धर्म का काम करने की कोशिश करते हैं ताकि परमेश्वर का ध्यान को खींचने की कोशिश करते हैं, Because we feel if we don't do those things, God may not be pleased with you. क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर वो सारे काम हम ना करेंगे तो शायद परमेश्वर मुझसे आनंद ना होगा। Amen. My dear friends, we need to know Christ died for us when we were sinners. He already loves us. He already has paid the price. His arms are wide open for you. और मैं प्रिय आपको कहना चाहता हूँ फिर एक बार, जब हम पापी था, परमेश्वर से दूर था, प्रभु यीशु हमारे लिए मरा और उसके जो बाहें हमारे लिए खुली है हमेशा के लिए। Amen. You know, there's a story of this grandma who were looking after two of her grandsons. एक दादी का एक ऐसा कहानी, एक नानी का जो उनके जो नाती पोतों का वो ख्याल रखता था। And you know, she had few beautiful ducks in her backyard. और उसके जो आंगनों में कुछ खूबसूरत जो हांस हम कहते हैं डक बतख रहते थे। So when these boys were playing, one day the younger boy who was 7 years old, you know, when he was playing with the stones, he accidentally hit a duck, and one of the ducks, grandma's ducks, died. और यहाँ पर भी देखते हैं कि एक 7 साल का लड़का जो है, और घर में कुछ लोग खेलने का समय, एक 7 साल का लड़का जब पत्थर मार रहा था तो उसके बतख को लग गया और उसका ग्रैंड मदर का जो बतख मर गया नानी का। And his older brother, who was about 12 years old, he saw that and he said, "Okay, now I know what you did to our grandma's duck." और लेकिन बड़ा भाई क्या बोल रहा है 7 साल का भाई को, मैंने देखा है तूने पत्थर से नानी का बतख को मार दिया है। And you know, when the evening when we came, when they were cleaning up the house, it was the older boy's duty to clean up all the vessels. तो घर साफ सफाई का काम आ रहा था शाम का, सब जिम्मेदारी है परिवार का, तो बड़ा भाई का काम काज था शाम का बर्तन धोने का। But the elder boy called the younger one and said, "If you want me to keep quiet about the duck, you wash my dishes." तो बड़ा भाई ने आके उसको बोला, अगर तू चाहता है कि तेरे बतख जो तूने बतख मारा था नहीं बताओ तो आओ और मेरे बर्तन को धो, मेरा काम करो। So this younger boy was so afraid that the grandma would punish him, so he washed his brothers and everybody's dishes that day. और ये छोटा लड़का जो है बहुत डर रहा था कि अगर बता दिया तो क्या हो जाएगा नानी को, तो वो जाके बर्तन धोने लगा। So day after day, every time the older brother was using this to control his younger brother and to get all his work done. और दिन प्रतिदिन बड़ा भाई जो है छोटा भाई को जो है इस्तेमाल कर रहा था और वो बतख का कहानी बोल बोल के उसको डरा डरा के उसे इस्तेमाल कर रहा था। After many days, the younger boy became so tired and he decided, I am not going to live like this anymore. और बहुत दिन ऐसा होने पर छोटा वो जो भाई था थक गया कि मैं कैसे ऐसा बंधन में बैठूंगा, मैं और ऐसे जीना नहीं चाहता। उसने सोच लिया। He said, even if the grandma beats me so much, I don't care. I'm going to go and tell her the truth. और उसने सोचा कि अगर मुझे दादी मारे तो भी मारे, लेकिन मैं जाके सच्चाई तो बता ही दूंगा उसको, नहीं डरूंगा मैं। So one evening, the boy went very fearfully and he went to his grandma's room and he told her the whole story. और एक दिन शाम का समय ये बच्चे जो है नानी के पास में गया और पूरा कहानी दादी को बताया। And the grandma called this boy to her और दादी ने ये लड़का को उसके पास बुलाया and he put her arms around him. और उसने अपने बाहें ये बच्चे के ऊपर में बढ़ाया। And she said, my dear son, उसने कहा मेरे I नाती, have seen, he said, I have seen the day you killed the duck, I was watching through the window. और उसका नानी कहता है जिस दिन तूने उस बतख को मारा था मैंने खिड़की से देखा था तूने मारा था। I was watching how your brother was controlling you and making you afraid and getting all his job done through you. और मैं ये भी देखता था कि तेरे बड़े भाई तुझे कैसे ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करता था और उसका सारा काम तुझसे करवाता था। And then the boy said, but grandma, then why didn't you come and intervene earlier? Why didn't you tell me? लेकिन नाती ने तब कहा कि अरे नानी तब तो आके क्यों नहीं बोला, क्यों आपने दखलअंदाजी नहीं दी। She said, I was waiting to see how long you will allow your older brother to control you. मैं ये, नानी तब उत्तर दे रहा, मैं ये इंतजार कर रहा था देखने के लिए कि कब तक तेरे बड़े भाई तुझे कंट्रोल करने के लिए तू समय देता रहता है। Amen. 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 My dear friends, this is what happens in our relationship with God. मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के साथ में संबंध में यही बात हमारे जीवन में होता है। Amen. Here Penina is seen as a rival
Penina is a picture of the enemy who is always provoking, who is always showing or highlighting your failures and trying to control your life and your relationship with God. और हम यहाँ पेनिने को देखते हैं, हमेशा अपना सपना को, हमेशा अपना जो परिस्थिति को देखकर हन्ना को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है. Amen. She was always showing, highlighting her failures. और यह देखते हैं कि जो हन्ना जो है हमेशा अपना फेल्यूर, अपने पास जो नहीं है उसके बारे में हमेशा दोष करते हैं. She was showing all her children. See, I have so many children. I am pleasing my husband, but you don't have any तो children. पनीना तो हमेशा क्या बोलता था कि मेरे पास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, हन्ना तेरे पास तो कुछ भी बच्चे नहीं है. Amen. So can you imagine how Hannah would have felt? तो आप लोग सोचिए कि हन्ना को कैसे लगा होगा. Amen. But everything changed when her husband Elkanah came and told her that I love, in verse 8, how he said, you know, that am I not better to you than 10 sons? और यहाँ पर मैं जब जो हन्ना ने जब आके एल्काना से बातचीत हुआ तो एल्काना जब उसे उत्तर देता है, क्या 10 बेटा से भी ज्यादा मैं अच्छा नहीं हूँ तुम्हारे लिए. Amen. So he is not even asking her any children. He is saying, I want to make up for your sorrow. I want to make up for your problem by being a better husband, a husband who is better than 10 sons for you. और यहाँ एल्काना जो है हन्ना को ये कहना कोशिश कर रहा है कि मैं 10 बेटे से अच्छा हूँ, इसीलिए कि तेरे दुख में, तेरे कष्ट में मैं साथ देना चाहता हूँ और तेरे लिए संग में हूँ. Amen. See, this is a picture of the love of the Heavenly Father towards us. मेरे प्रियो, एक वो चित्र है, ये नजारा है स्वर्ग पिता का प्रेम हमारे लिए. Amen. He is not looking at our performance. वो कौन काम कैसा कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है, उसको नहीं देख रहा है. He just wants to enjoy his children. वो अपने बच्चे को बस प्राप्त करते उसे आनंद उठाना चाहते हैं. He wants to have a good relationship. वो बहुत अच्छा संबंध बच्चे के साथ रखना चाहता है. That is what our Heavenly Father is interested in. और हमारे स्वर्ग पिता जो उसी बातों पे चाहत बनाए रखते हैं. Amen. But Amen. after Elkanah told Hannah about whether she gives children or not, he still loves her. That is when Hannah was able to bear a child. और जब एल्काना ने हन्ना को ये बात कहा कि तुम्हारे पास बच्चे हो या ना हो, मैं तुमको प्रेम करता हूं, उसके बाद में हन्ना का भी बेटा होता है. Amen. Amen. So Hannah felt so much of a release. All her burden was gone. All the pressure was gone. All the fear was gone. See, only after that she was able to bear fruit. She was able to bear children for her husband. और वहां पर में हम देखते हैं कि उनके सारे बोझ चले जाते हैं, उनके सारे चिंता चले जाता है और उसके बाद में वो आजादी के साथ साथ उनका बेटा पैदा होता है. Amen. My dear friends, Amen. God wants us to be free like that. परमेश्वर चाहते हैं कि आप आजाद वैसे बने. Amen. Amen. So here we see, yes, she was able to perform. She was able to give good gifts to her husband, but it was because of the knowledge, because of the understanding that how much her husband loves her, irrespective of her failures. That is when, only when she knew that, she was able to bear fruit in her life. हन्ना कब अपने जीवन में आशीषित हुई है, हन्ना ने कब अपने पति के लिए वो बेटा को जन्म दे पाया, तब जब उसे एहसास हुआ कि उसका पति उसे प्रेम करता है, उसका वो ख्याल रखता है, उनका बोझ और उनका चिंता जब उनसे दूर हो गया, तब उसका जीवन में वो आशीष को देख सका. Amen. Amen. It was when Hannah knew whether or not she was able to give children, it did not matter. Whether she had failures, it did not matter. Her husband still loved her. That's when she was able to bear जब हन्ना को एहसास हुआ कि मेरे पास में बच्चे नहीं हैं, मेरे पास में बहुत कुछ नहीं है, फिर भी जब उसको पता चला कि उसका पति उसको प्रेम करता है और उनका जो आजादी महसूस हुआ, तभी उसका जीवन में वो बेटा का पैदा हुआ. Amen. See, that is what God desires from us. मेरे प्रियो, परमेश्वर वही चाहते हमसे भी. This is what God has stated in the Word of God for us. यही परमेश्वर ने अपने वचनों पे लिखा है हमारे लिए. The golden verse, John 3:16 says, God so loved the world that He gave His only begotten Son for all of us. हम लोग जिसको गोल्डन वर्स करते, एक पद है, सोनाली पद जिसको हम कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया. Amen. God loved you so much. यूहन्ना 3:16 के आधार पे परमेश्वर ने आपको बहुत प्रेम किया है. Even with all your failures, even with all your mistakes, even with all the sins you had done,
God still loves you. आपके सारे अधर्म के कारण, आप हारने के कारण, फेलियर होने के कारण भी परमेश्वर ने फिर भी आपको प्रेम किया। Amen. It's when Hannah understood that irrespective of her failures, still her husband loves her. That's when the fruit began to come out of her life. हन्ना को जब एहसास हुआ अपने जीवन में समस्या होने के कारण भी, जब उसको पता चला कि उसे प्रेम करते उसका पति, तब वो फल उसका जीवन में प्राप्त करने लगा। Amen. Amen. The next following year, God gave her a beautiful son and called his name Samuel. Became a great prophet for Israel. और ठीक उसी का आने वाला वर्ष 1 साल में परमेश्वर ने एक बेटा को उसको दे दिया जिसका नाम सामुएल है, जो परमेश्वर का बड़ा भविष्यवक्ता है। Amen. So what we do for God comes out of an understanding of how much God loves me. हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं या फिर परमेश्वर के लिए हम क्या होते हैं, वो कब होता है? जब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। Amen. It is not the other way around. It is not by saying, oh, if I do many things, then God will love me. ये दूसरा तरीका से नहीं होता है, जैसे कि हम सोचते हैं मैं प्रभु के लिए ये करूंगा तो वो प्रभु मुझे प्रेम करेगा, ऐसा नहीं है। Amen. Yeah. You see in the life of Zacchaeus, ज़क्कियस के जीवन को हम देखते हैं, he was seen as a great sinner. एक बहुत बड़ा पापी के तौर पे उसे देखा जाता है। But Jesus first told him, Zacchaeus, I am coming to your house. और यीशु ने उससे कहा, ज़क्कियस मैं तेरे घर पे आता। Amen. Zacchaeus never expected Jesus to come to his house. ज़क्कियस ने कभी भी ये सोचा भी नहीं की, कल्पना भी नहीं की यीशु मेरे घर में आएगा। When Zacchaeus understood that God loved him even with all his failures, that is when repentance, that is when change of life happened in जब Zacchaeus. ज़क्कियस को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उसको इतना प्रेम किया और उसको वो जानकारी जब हुआ, उसका जीवन में मन परिवर्तन आया। In the woman who was caught in the act of adultery, when Jesus stood for her and said, I don't condemn you, go back and sin no more. When she understood, God still loves me even though I was a sinner, that is when her life changed. जब वो व्यभिचारिणी स्त्री, जब उसको पता चला कि गलती के करने के आधार पे भी परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझे क्षमा करता है, उसका जीवन तभी बदल गया। Amen. When the prodigal son came back to the father, when he told his father that I have sinned against heaven and you, when the father hugged him and accepted him, that is the love he understood. The father still loves me. That is when his life changed. और उड़न पुत्र का कहानी हम लोग जानते हैं, जब वो सब कुछ छोड़कर अपने पिता के पास में आया और जब उसको पता चला कि उनका पिता उन्हें बहुत प्रेम करता है, तभी उसका जीवन परिवर्तन हो गया। Amen. My dear friends, let us know how much God loves us. Let us really rest. Let us really find that peaceful place in our relationship with God. मेरे प्रियो, आइए हम ये बात को जानें कि परमेश्वर हमको कितना प्रेम करता है और उसका प्रेम में विश्राम करे और आपका दिल में शांति पाए। Don't let the enemy come like Penina in your life and highlight all your weakness, highlight all your failures and drive you away from the presence of God. पेनिना का समान कोई शत्रु का अवसर ना दे कि आके आपके जीवन में डर, नकारात्मक बातों से आपके जीवन को भरने के लिए अवसर ना दे। Amen. In the book of Hebrews chapter 4, Bible says we can come to God at any time with confidence. हिब्रू का Amen. किताब के अनुसार हम परमेश्वर के पास में हिम्मत के साथ कभी भी आ सकते हैं। Why? Because He wants to give grace and He wants to give mercy when we need it. ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर वो अनुग्रह, वो दया जब हमें चाहिए वो देना चाहता है हमको। Amen. Yes, if you have failures in your life, if you have problems in your life, take it to God, take it to your Abba Father and give your problems to Him. He is the only one who can forgive you. हाँ, ये- He is the only one who can change you. हाँ, ये जरूरी है कि आपके पास में जब समस्या है, आप जब फेल्यूर होते हैं, आपके जीवन में जब कष्ट होते हैं, आप प्रभु के पास लेके आए, प्रभु उसको बदल सकता है, परमेश्वर उसको परिणत कर सकता है। A change in your life will never happen if you keep on trying to perform and please God in your life. मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमेशा आप खुश करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, कार्य करने के लिए कोशिश करते रहे तो वो परिणत आपका जीवन में कभी नहीं आएगा।
you will constantly be in a very vicious cycle of trying to please God, being guilty, being fearful, then again pleasing God. You will always be in that cycle. और हमेशा एक साइकिल के समान आप आते रहेंगे कि परमेश्वर को मैं खुश करूंगा, फिर आप फेल हो जाते हैं, फिर कोशिश करते, उस जगह पे आप आ जाते हैं। Amen. But if you know or if you have an understanding of how much God loves you, that is the understanding that will bring a change in your life. मैं कहना चाहता हूं, जब आपको पता चलता है परमेश्वर आपको प्रेम करता है, वो समझ, वो एहसास आपका जिंदगी बदल देगा। Hallelujah. My dear Amen. friends, this is why Jesus said, one whom the Son sets free will be free indeed. इसीलिए यीशु ने कहा, जिसे पुत्र आजाद करता है वो आजाद हो जाता है। Amen. So today if you are living in guilt, today if you don't have the right relationship with God, I want to ask you, come to the Heavenly Father and just know how much He loves you, how much He cares for you. मैं आज आपको अवसर देना चाहता हूं, अगर वो आजादी को आप महसूस नहीं किया है तो यीशु के पास आए और वो प्रेम को जाने की कितना मोहब्बत यीशु आपको करता है। Amen. Pray to God. Fast, but let it not come out of fear. Let it come out of a love, an overflowing love you have for God. प्रार्थना कर सकते हैं, आप उपवास करते हैं, लेकिन डर के आधार पे नहीं, परंतु परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है उस प्रेम के आधार पे उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के पास में आप करें। Amen. When you fast, it is about spending time with God. It is because you just want to enjoy the presence of God. Amen. In your life. मैं कहना चाहता हूं, जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति का उपभोक्ता आप बनना चाहते हैं, उनको उपस्थिति में आनंद और मगन होना चाहते हैं, इसीलिए आप उपवास करें। Even when you pray, it's because you enjoy the presence of God. You love to be in His presence. That's why we come and we just spend time in the presence of our Abba, in the presence of our Father. जब आप अब्बा और पिता के पास में जब प्रार्थना करते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आप उनके साथ बातचीत करने के लिए आनंद उठाते हैं, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के साथ में आप आनंद को उठाते हैं। Only when we understand this, real fruit will come out of our lives. जब आप इस बात को जानोगे, तभी सच्चाई जो फल है आपके जीवन में आएगा। Amen. So as I am closing, आमीन। जैसे मैं समाप्त करूं इस समय, and I want to give an opportunity for anybody who does not know the love of this Heavenly Father. मैं उन लोगों को यह अवसर देना चाहता हूं जो स्वर्गीय पिता का बहुमूल्य प्रेम को नहीं जानते। You know, as I said, God already demonstrated His love for us on the cross of Calvary. जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने अपने प्रेम को काल्वरी क्रूस पर प्रमाणित किया है। Amen. There is nothing stopping Amen. you from going to God. परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें कोई बात रोकना नहीं चाहिए, Because He has done it all. और उसने सब कार्य कर चुका है। On the cross of Calvary, when He died, He paid the price for all your sins, for all your curses and sicknesses. और Jesus Christ paid the price. और जब वो क्रूस पे मरा, उसने सारे रोगों के लिए, सारे बीमारों के लिए, सारे पापों के लिए वो मूल्य को दे चुका है। Now all we need to do is come to Him with a repentant heart and say, Lord, I believe You took my place. Now be the Lord of my life. आपको एक ही काम करना है, मन परिवर्तन करते हैं, कहने प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये सारे गलतियां मैंने की है, परंतु तू मुझे क्षमा करता है। Amen. If you want to make that commitment to God today, अगर वो समर्पण आज आप परमेश्वर के पास करना चाहते हैं तो I would love to lead you into a prayer. एक प्रार्थना में मैं आपको अगुवाई करना चाहता हूं। You can repeat this prayer after me. आप लोग ये प्रार्थना हमारे पीछे पीछे कर सकते हैं। But know that this is your prayer. This is not my prayer. I'm just, helping you to pray. But this is your prayer. You are making this prayer and commitment to God. परंतु ये बात को जाने कि ये मेरा प्रार्थना नहीं है, मैं आपको मदद कर रहा हूँ ये प्रार्थना करके, परंतु ये प्रार्थना आप अपने दिलों से करना है, मैं आपको मदद कर रहा हूँ। Amen. If you're ready, please close your eyes and say this prayer after me. अगर आप तैयार हैं तो आंखों को बंद करें और ये प्रार्थना हमारे पीछे करें। Loving Heavenly Father, स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, come to your presence. मैं तेरे पास आता हूँ। I accept that I am a sinner, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, but I know that you still love me पर मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे फिर भी प्रेम करता है, because you sent your Son to die in my place.
क्योंकि मेरे जगह में तूने अपने पुत्र को कुर्बान होने के लिए भेज दिया। That Jesus died, shed his blood, and paid the price for all my sins. यीशु मरा, अपने लहू को बहाया और मेरे पापों का सारे गुनाहों को तूने चुका दिया परमेश्वर। And on the third day, Jesus rose again for me. और तीसरे दिन यीशु मसीह मेरे लिए मरे हुए से जीवित उठा। Father, I believe that today. पिता, मैं ये विश्वास करता हूँ आज, And today I open the door of my life for Jesus Christ. और आज मैं अपने दिल का द्वार खोलता हूँ यीशु मेरे दिल में आने के लिए। Jesus, come into my life. यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आइए। Lord, forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे। Make me a new person. मुझे नया व्यक्ति बनाइए। Be the Lord of my life. मेरा जीवन का प्रभु बन जाइए आप। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Amen. My dear friend, if you have prayed that prayer, that's a very powerful and one of the most important prayer that you would pray in your life. मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना किया है, ये शक्तिशाली एक प्रार्थना है और आपका जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन आपने बनाया है। Amen. But this is the first step. You need to grow in God and you need to find a good church and be a part of a believing community. परंतु ये पहला कदम है आपका। आज आपको एक अच्छा चर्च को ढूंढना है जहां पर मैं प्रभु का वचन पढ़ सके और परमेश्वर के करीब आप जा सके। Amen. My dear friends, believe all of us were blessed today through our service. और मेरे सारे दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ, आज की आराधना से आप आशीषित हुए हैं। Amen. We believe that you will have an amazing week ahead. मैं विश्वास करता हूँ आपका सप्ताह बहुत अच्छा होगा आने वाले दिन में। Amen. Keep serving God. परमेश्वर का सेवा करते रहे। Stay positive. आप सकारात्मक बने रहें। Be full of faith. विश्वास से परिपूर्ण होते रहे। Be a blessing to somebody else. किसी और के लिए आशीष का कारण बने। Amen. As we are closing, I want to send us with the word of blessing. जैसे हम समाप्त कर रहे हैं, आज आशीष के वचनों से मैं आपको भेजना चाहता हूँ। Amen. आमीन। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको आशीष देवे और आपको रखे। May the Lord turn his face toward you and be gracious to you. परमेश्वर अपने चेहरे को आपके ऊपर में चमकाए और आपको अनुग्रहकारी बने। May the Lord turn his face toward you and give you peace. परमेश्वर अपने मुख को आपकी ओर लगाए और आपके दिल में शांति देवे। Amen. May the love of the Heavenly Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with each and every single one of you. पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हर एक के साथ सदा सर्वदा होती रहे। May God bless you guys. आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। Amen. As we are going out, we're going to go out with a song of praise. Let's sing and praise God and celebrate as we're going out. ऐसे जैसे हम जा रहे हैं, आइए हम भजन के साथ, गीतों के साथ, आनंद के साथ हम आगे बढ़ते और हम यहाँ से विदा लेंगे। आमीन। God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष देवे। हो जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। लॉर्ड तेरा नाम। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस
thought